Hello, Sumit sir, Yes, sir. am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Now, are you getting screen? Yes, sir. Full or up? No, it's full. Okay, it's okay, sir. It's okay. Okay then. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Ma'am. बोलिए मैम जोर से बोल गुड इवनिंग मैम Good evening, ma'am. Good evening, sir. এটা বন্ধ করে রাখলে সামনে
Good morning, ma'am. How are you? Good evening, sir. Good evening, ma'am. Very good evening to all the students as well as the parents. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening, evening, ma'am. sir. Good evening, sir. Good Good evening. evening, ma'am. Good evening, ma'am. Very good evening to Good all of evening, you. ma'am. Very good evening to all of Good you. evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good Good evening. evening, sir. Sir, good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Students, listen carefully. When the instructions about this national education policy will start, nobody will speak. Okay, you will just listen and you will see the video, whatever is the presentation will be there on the screen. Nobody will speak at that time. Especially we have kept this meeting to make you aware about the National Education Policy 2020. I hope the parents as well as the students can able to understand. So our school principal, Sir Avijit Jana, he will just describe you, instruct you about the National Education Policy. That actual, what is the criteria and why the implementation has been made necessary from the government in the coming years. So you just wait, students, but please don't speak in between. Nobody is allowed to speak while the session will begin.
Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir and ma'am. Good morning, sir. Good morning, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good Good evening. evening, Good sir. evening. Good evening, Good sir. evening, Good ma'am. evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good Good morning. evening. Good morning. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good morning, sir. Good evening, Good sir. evening. How are you, sir? Good evening, sir. Good Good evening, evening, sir. sir. Good evening, sir. Good Good evening, evening. Good evening. sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Good evening, sir. sir. Good evening, sir. Morning, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. करो पहले पलथी मार के ढंग से पिंडा रख के पानी Students, keep your microphone off. Everyone, keep your microphones off. गुड इवनिंग सर
The first one. Good afternoon, sir. Ma'am, what is this national education policy? Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir.
सर आप कहाँ हैं? सर आपका कुछ आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, बोलो। यस सर। अच्छा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। 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 Okay. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग Good evening to all of you. Good evening, sir. 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 Good evening Hello. to all Sir. parents, students, Good evening, sir. and my dear colleagues. Good evening, sir. Good evening. So today we are going to conduct a webinar, and first of all I am telling that today is the Mother Tongue Day, Matribhasha Divas, especially Bengali. So for that already our teachers already they are trying to conduct for the celebration of Mother Tongue Day, Bengali Mother Tongue Day. So that was conducted through virtually. So today already one thing I would like to represent that might be all of you known about or getting the information about new education policy. New education policy that will be implemented from 2022. But that new education policy 2020, how the framework will be there, how students will study, what will be the curriculum of new education policy 2020. So that is the basic criteria. So parents also should have knowledge about that. So in future, then only they will be able to encourage their children to choose the path of the children. So first of all, what is the vision of the policy? Basically develop an education system deeply rooted in Indian ethos, which has the capability to provide high quality education to compete in the global world. Number two, the curriculum and pedagogy must develop a sense of respect towards fundamental duties and Constitution of India and have a deep bond with the country. Develop
a sense of pride and respect for the country and be responsible for human rights. Sustainable development will be there, global well-being, thereby reflecting a truly global citizen. So this is the vision of the policy. So naturally, what will be the key principle of new education policy? Respect for diversity and local context in all curriculum pedagogy and policy. As the cornerstone of all education decision, then it will come under community participation, encouragement, facilitation for philanthropic, private and community participation. और उसका बाद जो आएगा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करें टीचिंग लर्निंग मेथड में, जहां पर लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं रहेगा, लोकल लैंग्वेज है, कोई मदर टंग है जो क्लास 5 तक पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स एंड इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. नेक्स्ट, emphasize conceptual understanding rather than rote learning and learning for exam. हम लोग सिर्फ अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी चालू हो रहा है सिर्फ एग्जाम के लिए लर्न नहीं करना, रोड लर्निंग नहीं होना चाहिए, उसमें इस तरह से बच्चा सीखेंगे जहां पर कम से कम बच्चा इन फ्यूचर दे कैन डू समथिंग, दे कैन स्टैंड बाय ऑन देयर फीट. They will be totally independent. Next will be unique capabilities. That means they will be recognizing, identifying them in each student. जो एक स्टूडेंट है जो एक काम कर सकते हैं, उसका बाद आएगा क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी. टू एनकरेज लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन. एक बच्चा जब पढ़ाई करेंगे अपना दिमाग से वो सोचेंगे, लॉजिकल डिसीजन क्या लेंगे, व्हाट विल बी द इनोवेशन, उसमें क्रिएटिविटी आएगा, उसमें इनोवेटिव कुछ आएगा जो अपना ब्रेन को इस्तेमाल कर सकते हैं. देन ओनली इट विल बी कंटिन्यूअस रिव्यू बेस्ड ऑन सस्टेन रिसर्च एंड रेगुलर assessment by educational experts, means all teachers. Basically हम लोग क्या जानते हैं, अभी का जो सिस्टम है, दिस सिस्टम फॉर प्राइवेट स्कूल, प्री प्राइमरी, नर्सरी, LKG, UKG, then 1 to 10. So in class 10 board exam is there. So nursery starting 3 classes, then class 1 will start 6 classes. So there are 2 stages. तो हम एक बार क्या करते हैं, जो 10वीं में जो बोर्ड होता है 10th का बोर्ड, उसका बाद प्लस 2 में बोर्ड होता है. But whenever new education policy will be implemented, that will be something different. What is the different? जैसे एज 6 से 16 तक जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें क्लास 1 में एडमिशन लिया जाता है, तो एज 6 से 16 तक मतलब 1 से 10 10 क्लास 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम होगा, और उसका बाद बच्चा का उम्र और एज जो 16 से 18 होगा तो 11 12 वो पढ़ाई करेंगे. देन दे higher secondary or plus 2 board exam. But in new education policy, first will be foundational stage, second is preparatory, third is middle, and last one secondary. But for foundational stage, that is for 3 years, जिसको अभी हम गवर्नमेंट का तरफ से बोलते हैं आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल बाटिका जिसको बोलते हैं,
जो 3 से 6 साल तक वहां पर पढ़ेंगे, 3 साल, और उसका बाद आएगा क्लास 1 एंड 2, जो बच्चे का उम्र 6 से 8 साल तक होगा, क्लास 1 क्लास 2 के लिए 2 इयर्स। तो इसका पैटर्न हो गया 5+3+3+4, न्यू pedagogical and circular curricular structure of school education. So total 12 years. So 5+3+3+4. So 5 years they have to spend for foundational stage. That foundation stage means multi-level play activity based learning will be there. And for that, what they will do? They will learn basic things from there, because in fundamental stage, foundational stage, pedagogy of early childhood care and education should be there. Focus on good behavior, courtesy, ethics, personnel, public hygiene, cleanliness, focus on teamwork and cooperation. तो इसका ऊपर फाउंडेशनल स्टेज खड़ा होंगे 5 साल के लिए। देन स्टूडेंट्स विल बी अपीयर्ड इन ग्रेड 3, क्लास 3 से 5, जिसमें बच्चों का एज होंगे 8 से 11 साल तक, 11 years. So 3, 4, 5, 3 years. This is under preparatory stage. There play, discovery and activity based and interactive classroom learning will be there. Next, class 6 to 8, 11 to 14 years, that is under middle. So in middle stage, experimental learning will be there in the sciences, mathematics will be there, arts will be there, social sciences will be there, and humanities. And last one is secondary stage, 9 to 12. Age will be between 14 to 18. So 4 years for secondary. तो ये जो 4 साल है उसमें ये होंगे 9 से 12 तक। लेकिन अभी जो हो गया, हम शो कर रहे हैं, जो फाउंडेशनल, अभी भी चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट स्कूल है, फाउंडेशनल स्टेज तो पूरा करना पड़ेगा 5 साल के लिए। उसका बाद 3 to 5 3 साल के लिए, 6 to 8 3 साल के लिए, 9, 10, 11, 12 4 साल के लिए। तो पहले जो एग्जाम होते थे सीधा 10 में और 12 में, अभी ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब चालू होगा, एक बार क्लास 3 में एग्जाम होगा, उसका बाद 5 में, उसका बाद 8 में, और उसका बाद 9 जब आ जाएंगे तो अब सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। तो now the situation is like that, whenever students will clear their 10th standard, so after that for class 11 they have to choose the stream, either science or humanities or commerce. तो कोई भी स्ट्रीम चूज करना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई स्ट्रीम चूज करने के लिए जरूरत नहीं होगा। इसमें क्या करना है, जो सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अगर कोई फिजिक्स ले सकते हैं, मैथ्स ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। कोई चाहते हैं जो चलो हम फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं रखेंगे, बायोलॉजी रखेंगे, मैथ्स रखेंगे, बिजनेस स्टडीज रखेंगे और न्यूट्रिशन रखेंगे। अपना हिसाब से कोई मर्जी वो अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंपॉर्टेंस दिया गया। तो ये स्ट्रक्चर अभी आने वाला है, which will be implemented from 2022. So next, शिफ्ट 2, और जो भी एजुकेशन होगा ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग। ऑलरेडी हमने स्कूल में शुरू कर दिया कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग प्रोग्राम। अब देख रहे हैं जो बच्चा प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, अब देख रहे हैं बच्चा को दूसरा तरह से काम दिया जा रहा है। तो फॉर व्हाट? Because such type of education will be shifted to competency-based teaching, learning and assessment. Whereas अब क्या देखेंगे, इसमें क्या होगा,
जो करिकुलम है वो रिड्यूस हो जाएगा टू द कोर एसेंशियल टू मिनिमाइज रोड लर्निंग। जिसमें जरूरत है उसको लेके काम करना है, बिकॉज they are trying to promoting critical and creative thinking aligned to the 21st century in classroom. Then it will come to shifting traditional assessment to competency based. जो ट्रेडिशनल असेसमेंट चल रहा है अभी, जो पीरियोडिकल टेस्ट ले लिया, पीरियोडिकल टेस्ट लेने के बाद नंबर हमने शो कर दिया, उसका बाद क्या हुआ, हाफ ईयरली ले लिया, एनुअल एग्जाम ले लिया, उसको नंबर दे दिया, बस बच्चा को रेडी कर दिया। बट in new education policy they don't want such type of things. They want competency focused only. After that we can track the students progress also comprehensively and frequently for whole year. Then only we can design the tool and resources to acquire learning outcomes. So naturally whenever we are telling about critical thinking, ये critical thinking क्या होता है? The main strengths of critical thinking, especially analysis, evaluation, and further argument. That means by being fair and open-minded, active and informed, skeptical, independent. Skepticism means willingness to question or to entertain doubts. जो भी डाउट होता है, जो भी सोचते हैं हम, तो उसमें क्या है, मेकिंग इन्फॉर्म, उसको इवेल्युएट करके हम जांच कर सकते हैं, उसको क्लेम कर सकते हैं, उसको आर्गुमेंट आएगा, लेकिन उसमें हमारा इच्छा से हमारा जो डाउट है उसको हम क्लियर कर सकते हैं उसमें, तो ये लेके बनेगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग उसमें हमें फायदा देता है। और उसमें और एक चीज आप देख रहे, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड। व्हाट इज कॉम्पिटेंसी फोकस्ड, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो कॉम्पिटेंसी मतलब क्या है, जो नॉलेज है हमारा उसको तो डेमोन्स्ट्रेट करना है, तो अब तो बढ़ेगा इसका स्किल्स, उसका एबिलिटी, एटीट्यूड टू परफॉर्म ए टास्क सक्सेसफुली एंड एफिशिएंटली ऑन रिपीटेड ओकेजन। Naturally, without thinking consciously, by meeting real life challenge and analyzing, reasoning, communicating ideas effectively. तो कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है, जो अपना नॉलेज है उसको a piece of knowledge, जिसको इंडिविजुअल स्किल जो है, एबिलिटी है, उसको डेवलप करना है इन ए ट्रांसपेरेंट वे। ट्रांसपेरेंट वे मतलब आपका अंदर जो है पोटेंशियल है, जो स्किल है, आपका नॉलेज में जो एबिलिटी है, उसको सभी को जानना है। यू कैन ओपन इट, इट विल बी ट्रांसपेरेंट। सो academic expectation of a particular level only can be increased. इसका मतलब क्या है, a competent person is capable of applying or using a set of knowledge, skills and abilities to successfully carry out a task in a defined setting. ये फायदा होता है यहां से। तो कॉम्पिटेंसी और लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे व्हाट इज दैट द स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू आफ्टर स्टूडेंट हैज अंडरगोन द लर्निंग प्रोसेस। ये भी हम देख सकते हैं, व्हाट इज दैट द स्टूडेंट्स नीड्स टू लर्न, नो in order to demonstrate that particular set of learning outcomes. What are the classroom transactions, activities that will become the basis for this kind of defined outcome of learning? अगर जो पढ़ाई हम कर रहे हैं उसमें से अगर कोई अच्छा रिजल्ट ना निकले तो उसका फायदा क्या है? सिर्फ पढ़ाई करके वॉमिटिंग करके चला गया तो उसमें हम देखते हैं कुछ अच्छा नौकरी मिल गया लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाए तो उसमें कोई फायदा नहीं है। How will the teacher check the learning or how will the student demonstrate the learning? How will teacher know at what level of learning the student is? What is the sum total of learning outcomes? Curriculum, pedagogy, assessment, criterion, reference, testing as mentioned. ये सारे कुछ ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हो सकता है। तो इसीलिए हमें इसको
देखना पड़ेगा। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जो है, दैट इज ऑपरेशनल पार्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एज वेल एज गाइडलाइंस ऑल्सो। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मोर प्रैक्टिकल हो जाएगा, प्रोफेशनल अप्रोच होगा, जहां पर क्या है, ऑल प्री डिफाइंड रियल लाइफ बेस्ड एप्लीकेशन ओरिएंटेड कॉम्पिटेंसीज, सारा कुछ उसमें आ जाएगा। उसमें क्या कंटेंट होगा, उसमें पेडागोजी क्या होगा, असेसमेंट कैसे होगा, सारा कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के थ्रू हर सब्जेक्ट को डिफाइन किया जाएगा। तो उसमें बच्चा खड़ा हो सकते हैं। और नेक्स्ट एक आपको टर्म मिल रहा है, आर्ट इंटीग्रेटेड। आपने सुना होगा, सभी टीचर ने अभी जो काम करवा रहे हैं, हर सब्जेक्ट को आर्ट का थ्रू देखना है, मैथ्स को भी आर्ट का थ्रू देखना है, साइंस को भी आर्ट का थ्रू देखना है, इंग्लिश को भी आर्ट का थ्रू देखना है, कोई भी लैंग्वेज है, चाहे तेलुगु है, चाहे हिंदी है, चाहे बंगाली है, चाहे संस्कृत है, चाहे उड़िया है, चाहे जो भी लैंग्वेज है। तो फ्रॉम आर्ट एंगल हाउ it can be defined. Similarly for other subjects also, how from art angle how it can be defined. तो उसका ऊपर सीबीएसई ने काफी इंपॉर्टेंस शो कर रहा है। तो उसमें आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग होना चाहिए, ये मैंडेटरी कर दिया सीबीएसई ने। तो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जो है सीबीएसई में, तो उसमें 2005 में रिकमेंडेड किया था आर्ट एज ए सब्जेक्ट at all stages covering all four major spheres: music, dance, visual arts and theater. We must bring the arts squarely into the domain of the curriculum, so infusing them in all areas of learning while giving them on identity of their own of relevant stages. तो इसमें एक्चुअल क्या कहा जाता, so the importance of Indian heritage crafts, heritage of crafts both in terms of their economic and aesthetic values should be recognized. तो हम जो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग बार बार बोलते रहते हैं, वो क्या है, so integration of art with education will lead to the betterment of learning and the classroom will become more joyful. Art integrated learning is a cross curricular approach to teaching and learning based on collaboration between the teaching of the subject with the teaching of art, where art in any multiple forms. देखो, एक सपोज मैथमेटिक्स को हम आर्ट का एंगल के देख रहे हैं, मतलब नॉट ओनली फ्रॉम ड्राइंग, कोई भी मॉडल हम बना सकते हैं। मैथमेटिक्स को फ्रॉम डांस का पार्ट से कैसे देखेंगे, म्यूजिक का पार्ट से कैसे देखेंगे मैथमेटिक्स को, म्यूजिक का एंगल से भी मैथमेटिक्स को हम आर्ट इंटीग्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा आर्ट है, कला है, तो हर सब्जेक्ट को उसी कला का थ्रू हम देख सकते हैं। तो ये इसीलिए सीबीएसई ने जो इसको इम्प्लीमेंट किया, जो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, व्हेन आर्ट इज इंटीग्रेटेड विद एजुकेशन, इट हेल्प्स द चाइल्ड अप्लाई आर्ट बेस्ड इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, exploration, critical thinking, creativity for a deeper understanding of the concept or topics. जो टॉपिक लेके पढ़ना चाहते हैं, उसको अगर बच्चा इन्वेस्टिगेट करेंगे, खुद उसको आर्ट ओरिएंटेड करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, अच्छा से सोचेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग, उसमें उनका अपना कुछ क्रिएटिविटी होगा, तभी ना बच्चा कुछ कर पाएंगे, जिसमें ऑल डिसिप्लिन विल बी परस्यूड बाय स्टूडेंट्स एट ऑल स्टेजेस रिक्वायर क्रिएटिव थिंकिंग। ये होता है आर्ट इंटीग्रेटेड। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या करता है, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ये जो आर्ट इंटीग्रेशन नॉट ओनली मेक्स द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस जॉयफुल, इट आल्सो हैज ए पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन लाइफ स्किल्स। ये जो आर्ट इंटीग्रेटेड, ये सिर्फ एजुकेशन को जो जॉयफुल करता है, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को नहीं है, वो स्किलफुल कर देते हैं बच्चों को। अनकंडीशनिंग ऑफ द माइंड लीडिंग टू हायर कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस बढ़ता है,
सेल्फ एस्टीम बढ़ाते हैं, अप्रिसिएशन होता है, एस्थेटिक्स होता है. So this integration broadens the mind of the student and enables her to see the interdisciplinary links between subject, topics and real life. नेचुरली जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका साथ टॉपिक का क्या लिंक है, रियल लाइफ का साथ क्या लिंक है, ये आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के थ्रू बच्चा को पता चल सकता है और उसी हिसाब से बच्चा अपना आपको इन फ्यूचर जनरेशन के लिए रेडी करते हैं. और उसमें क्या है, जो वोकेशनल कोर्स का बात आ जाता है उसमें बच्चा समझ लेते हैं जो कौन सा लाइन में उसको अच्छा लगेगा, तो उसी हिसाब से वो अपना पैर में खड़ा होके आगे जा सकते हैं. So naturally, early childhood care education, that is the foundation of learning. So इसको इंश्योर करना है जब सारे बच्चों ग्रेड 1 में विल बी रेडी बाय 2030. ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक्सपेक्टेशन है. Attain optimum outcome in the domain of physical and motor development, cognitive development, socio-emotional development, cultural, artistic development, and the development of communication and early languages, literacy and numeracy. तो एक बच्चा को जो इनिशियल कैडर से हाई क्वालिटी फॉर्म में लेके जाना है तो उसमें ये मदद करेगा. तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिपरेटरी क्लास बिफोर क्लास 1 फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज 5 years, लर्निंग शैल बी बेस्ड ऑन प्ले बेस्ड लर्निंग विथ ए फोकस ऑफ डेवलपिंग. उसको क्या करना है, रीडिंग जब बच्चों का उम्र 5 साल हो जाएगा तो अब वो पढ़ाई शुरू करेगा विथ कॉम्प्रिहेंशन, लिखने पाएगा, लिखना शुरू करेंगे अच्छा से. बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो शुरू होगा. हाँ, और जो उसका बेसिक लाइफ स्किल्स आप देख रहे हैं, जो एक बच्चा अपना लाइफ स्किल लेके ABC फॉर्म में एक ब्लॉग लेके ये कर रहे हैं, उसका स्किल जो है इंप्रूव होते जाएगा उसमें. तो इसीलिए फाउंडेशनल जो लिटरेसी और न्यूमेरेसी बाय ग्रेड 3 मतलब क्लास 3 में आ जाएगा. तो उसमें बुक एक्चुअल क्लास 2 तक ज्यादा बुक नहीं प्रोवाइड करेंगे. तो मेन मोटो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, बुक ज्यादा नहीं देना है, उसको रिड्यूस करना है, करिकुलम के रिड्यूस करना है. लेकिन इसीलिए क्या करना पड़ेगा, नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी विल बी फॉर्मुलेटेड एंड पब्लिक एंड स्कूल लाइब्रेरीज विल बी एक्सपांडेड. नेशनल मिशन जो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, फाउंडेशनल स्किल होगा उसमें अर्ली लर्निंग होगा, फोकस ऑन अर्ली रीडिंग राइटिंग एंड मैथमेटिक्स. 3 months प्ले बेस्ड स्कूल होगा, नेशनल रिपोजिटरी रहेगा, हाई क्वालिटी टीचिंग. और अभी तो CBSE का दीक्षा पोर्टल है, दीक्षा पोर्टल में घुस के बहुत कुछ रिसोर्सेज मिलता है जहां पर खुद पेरेंट्स वहां पर जाके सारे मटेरियल्स कलेक्ट कर सकते हैं. ट्यूशन के लिए कोई जरूरत नहीं है इसीलिए. और लाइब्रेरी जो है, स्कूल में लाइब्रेरी है, इंक्लूडिंग डिजिटल लाइब्रेरी टू बी लेवरेज. तो to bring children back to school and prevent children dropping out, the following steps will be taken. So that should be done. So mainly regular trained teachers at each stage should be there, special care will be there. School remains deficient on infrastructure support, universal participation of school by carefully tracking students time to time, have suitable opportunities, community partnership in terms of expertise and infrastructure support. हो सकता है किसी पेरेंट्स का जो बच्चों मान के चलिए हमारे स्कूल में 1200 बच्चे हैं, 1200 बच्चों में से हम देख रहे हैं किसी कुछ पेरेंट्स जो है तो किसी लाइन पर उनका कमांड है, तो हम उनका साथ अपना भावना शेयर कर सकते हैं, उनको हम स्कूल में ला सकते हैं और उनका जो आइडिया है, उनका जो इनोवेटिव थिंकिंग है, उनका जो क्रिएटिविटी है वो हम सभी बच्चा को दे सकते हैं. हो सकता है कोई डांस में है, कोई म्यूजिक में है, कोई हो सकता है आपका
फायर सेफ्टी हो सकता है, रोड सेफ्टी हो सकता है, मतलब दे आर फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। तो अलग अलग जो फील्ड में है उसको हम यूटिलाइज करके बच्चा को प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो फॉर दैट हियर वी आर गेटिंग जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट आएगा, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, लो सिलेबस एवं सब्जेक्ट लर्निंग, एम्फेसिस ऑन डिजिटल लिटरेसी। अभी तो ऑलरेडी डिजिटल लिटरेसी ऑलमोस्ट चालू हो चुका है, तो नेचुरली नाउ एम्फेसिस इज ऑन डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग एंड computational thinking, ethical and moral reasoning, promoting state to enter into bilateral agreements with nearby states to hire language teachers। हो सकता है हम लोग बंगाल में हैं तो हमारा नियर बाई जो स्टेट्स है, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, इधर सिक्किम है, तो नेचुरली उनका आसपास जो स्टेट है उनका जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए 21st सेंचुरी स्किल में क्लासरूम में एनकरेज करने के लिए डिजिटल लिटरेसी मस्ट, उसका बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्व करना बहुत जरूरी है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे बड़ा चीज है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो बच्चा मान के चलिए परफेक्ट बन गया फॉर द फ्यूचर। कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ योर एजुकेशन। उसका बाद आपको क्रिटिकल थिंकिंग में आना है। आपने जो पढ़ाई किया, सारा कुछ किया, जो लर्न किया, तो आपका क्या सोच रहे हैं, आपका थिंकिंग पावर क्या है, उसका बाद आपका क्रिएटिविटी क्या आएगा। तो ये सारा कुछ करने के लिए आपका हेल्थ सही होना चाहिए, आपको फिटनेस रहना चाहिए। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं जो आप डेली कम से कम योगा प्रैक्टिस कीजिए, हेल्थ फिटनेस रखने के लिए आउटडोर इंडोर गेम्स में आप इन्वॉल्व हो जाइए। कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा होता है, उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। एथिक्स हमें देखना है जरूर। उसका बाद साइंटिफिक टेम्परमेंट में आ जाएंगे। साइंटिफिक टेम्परमेंट बिना हम कुछ नहीं कर सकते नाउअडेज। तो उसका बाद कोलैबोरेशन होके हमें काम करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन गेट प्रॉपर आउटपुट। सो कॉन्टेम्पररी सब्जेक्ट कुछ इसीलिए सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, होलिस्टिक हेल्थ, डाटा साइंस, ऑर्गेनिक लिविंग, डिजाइन थिंकिंग, मशीन लर्निंग। ये न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया। सो ईयर लॉन्ग कोर्स ड्यूरिंग ग्रेड 6 to 8। अगर बच्चा जब क्लास 6 से 8 में जाएंगे तो सर्वे एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ ए सैम्पलिंग ऑफ इंपोर्टेंट वोकेशनल क्राफ्ट्स उसमें जरूरी है। उसमें इलेक्ट्रिक वर्क, कारपेंट्री। अब देख कुछ बच्चा आईटीआई पढ़ते हैं, कुछ बच्चा जो पॉलिटेक्निक पढ़ते हैं, कि कुछ बच्चे जॉइंट में जाते हैं। तो नेचुरली जब इंजीनियरिंग कोर्स में जाएंगे वो तो वोकेशनली है, वोकेशनल क्राफ्ट है। वहां पर प्लम्बर होता है, कारपेंटर होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, मेटल वर्क होता है, गार्डनिंग होता है, पोटरी मेकिंग होता है, एटसेट्रा वेरियस थिंग्स आर देयर, बट डिसाइडेड बाय स्टेट्स एंड लोकल कम्युनिटी एज मैप्ड बाय लोकल स्किल नीड्स। So for that, mathematics and computational thinking is required. इसके लिए mathematics और computational thinking जरूरी है, because increased emphasis throughout the school years। जो भी सीखना है स्कूल लेवल में सीखना है तो वो फिर क्या होगा, हम लोग इन फ्यूचर उसको और डेवलप करके सीखेंगे। और फाउंडेशन एक्चुअल स्कूल में क्या आता है, हम फाउंडेशनल स्टेज में रहते हैं, उसमें सीखते हैं बेसिक, और उसका बाद उसको क्या है डेवलप करके सीखते हैं, तो फिर हम एप्लीकेशन में जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, यूज ऑफ ए वेराइटी ऑफ इनोवेटिव मेथड्स। हमें वेराइटी जो इनोवेटिव मेथड्स है, इंक्लूडिंग रेगुलर यूज ऑफ पजल्स, गेम्स, मैथमेटिकल थिंकिंग, ये हमारे क्या करते हैं, एंजॉय देते हैं। अगर हम इसमें एंगेज रहे तो हमारा ब्रेन डेवलप हो सकता है। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग कोडिंग इन मिडिल स्टेज। तो इसीलिए हमें हमेशा ही वोकेशनल एजुकेशन जो है
उसका ऊपर इम्पोर्टेंस देना है। ये एनसीईआरटी ने सोचा, इसी हिसाब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया। तो वोकेशनल कोर्सेज थ्रू ऑनलाइन मोड रहेगा, ऑफलाइन रहेगा तो ऑनलाइन मोड ही ज्यादा रहेगा। तो पीरियोडिक एक्सपोजर रहेगा टू एक्टिविटीज आउटसाइड स्कूल थ्रू लाइक मीटिंग लोकल आर्टिस्ट, क्राफ्ट्समैन। वोकेशनल कोर्सेज टू बी ऑफर्ड थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड बाय 2025। ये सोचा उन्होंने जो कम से कम 50% ऑफ लर्नर्स दे विल गेट एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन। इतना तो एक्सपेक्टेशन किया। तो उसमें हमारा नॉलेज ऑफ इंडिया क्या होगा, जो एंशिएंट इंडिया है एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न इंडिया एंड इट्स सक्सेस एंड चैलेंज, इंडियाज फ्यूचर एस्पिरेशंस विद रिगार्ड टू एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, इस सारे इसका अंडर में आ जाता है। तो नेचुरली इंडियन नॉलेज सिस्टम्स इंक्लूडिंग ट्राइबल नॉलेज, indigenous and traditional ways of learning, specific courses in tribal, ethomedical practices, forest management, traditional organic crop cultivation, natural farming will be made available. And engaging course of Indian language knowledge system in secondary school as an elective. Video documentaries, students to visit different states as part of cultural exchange program, constitutional values will be developed in students, knowledge of critical issues facing local communities, states and country and the world also they will come to know. So after that also health education बहुत जरूरी है। So basic training in health including preventive health, mental health, well-being, nutrition, personal and public hygiene and first aid, detrimental and damaging effects of alcohol, tobacco and other drugs, इसका बारे में जानना चाहिए। So leveraging the power of multi-lingualism and language learning। देखिए जो बच्चा प्राइमरी लेवल में पढ़ रहा है कि प्री प्राइमरी पढ़ रहा है, हो सकता है उसका मदर टंग तेलुगु है, हो सकता है उसका मदर टंग बंगाली, हो सकता है उसका मदर टंग उड़िया, हो सकता है उसका मदर टंग कोई रीजनल लैंग्वेज होगा, एरिया मुताबिक उसका लैंग्वेज होता है। तो नेचुरली क्या है, चिल्ड्रन हुज प्राइमरी लैंग्वेज इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल आर मोर लाइकली टू ड्रॉप आउट द स्कूल और फेल इन अर्ली ग्रेड। अगर स्कूल में उसका लैंग्वेज नहीं मिलता है वो क्या करेगा, आइदर वो स्कूल छोड़ के चला जाएगा और फेल करेगा। तो इसीलिए जो सोचा है इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, मदर टंग और होम लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज विल बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हेरेवर पॉसिबल अंटिल एटलीस्ट ग्रेड 5, 5वीं क्लास तक, प्रेफरेबली उसको 8वीं क्लास तक भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा बात है, जो कम से कम बच्चा अपना लैंग्वेज में वो पढ़ाई कर सकेंगे, उसका बाद वो सीख सकते हैं। क्यों, जब बच्चा छोटा रहते हैं तो उसके लिए प्रेशर हो जाता है। अपना जो मदर टंग है, जो लोकल लैंग्वेज है, जो होम लैंग्वेज है, उसमें बच्चा अच्छा से सीख सकते हैं कोई भी मैटर। तो इसीलिए उसका ऊपर एम्फेसिस किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो द लैंग्वेज ऑफ इंडिया, अ फन प्रोजेक्ट एक्टिविटी इन स्कूल्स टू फैमिलियराइज विद द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस इन द कंट्री, ऑलरेडी वी नो, हमें सभी को पता है। तो इसीलिए जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2020-21 that will be undertaken by the NCERT based on the principles of this National Education Policy 2020, और ये अवेलेबल होंगे सभी रीजनल लैंग्वेज में, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और टेक्स्ट बुक जो होगा contain the essential core material important on a national level, but at the same time contain any desired nonsense supplementary material for local context also required. जहां पर possible होगा, school teachers also have a choice in the textbook they employ from among a set of textbook. A set of textbook रहेगा, वहां पर स्कूल और टीचर्स उन लोगों ने सिलेक्ट करेंगे जो कौन सा टेक्स्ट बुक इस स्कूल के लिए, इस लोकेलिटी के लिए
अप्रोप्रिएट रहेगा, तो उसको ही उन्होंने क्या करेंगे, रिक्वेशन देंगे, तो उसी हिसाब से प्रोवाइड किया जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट, तो बच्चों का जो डेवलपमेंट हुआ, एक उनका जो एसेस करना है कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो हमने बोला उनका जो असेसमेंट शिफ्ट फ्रॉम रूट मेमोराइजेशन स्किल टू फॉर्मेटिव इज मोर कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। वो याद कर लिया, सुना दिया, लिख लिया, वॉमिटिंग कर दिया, आ गया, बस खत्म, मार्क्स मिल गया। लेकिन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये नहीं चलेगा, कोई मेमोराइजेशन स्किल नहीं चलेगा, इसलिए वहां से उसको शिफ्ट करके फॉर्मेटिव में लाया जा रहा है, जो मोर कॉम्पिटेंसी असेसमेंट होगा, जिसको प्रमोट किया जा रहा है लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चा का लर्निंग का डेवलपमेंट, लर्निंग होगा प्रॉपरली और उसमें डेवलप होगा। टेस्ट हायर ऑर्डर स्किल्स, उसमें एनालिसिस खुद कर सके, जो आंसर उन्होंने लिखा क्यों लिखा, किस लिए लिखा, उसका रीजन देना है, उसको एनालिसिस करना है, क्रिटिकल थिंकिंग है, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा, जो एक क्वेश्चन के लिए आंसर क्यों है, क्यों दूसरा आंसर नहीं होता है, वो क्लैरिटी रहना है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, दिस विल बी द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर असेसमेंट एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट एंड ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस अक्रॉस स्कूल ईयर, एक बार क्लास 3 में उनका पेपर होगा, उसका बाद 5 में होगा, उसका बाद क्लास 8 में होगा, उसका बाद क्लास 10 में होगा, देन लास्ट क्लास 2 में उनका पेपर होगा। तो उसका बीच में कोई पेपर नहीं कंडक्ट किया जाएगा। तो वहां पर जो लर्निंग आउटकम्स आ जाएगा थ्रू असेसमेंट ऑफ कोर कॉन्सेप्ट्स एंड नॉलेज फ्रॉम द नेशनल एंड लोकल करिकुलम along with relevant higher order skills and application knowledge in real life situation rather than rote memorization. So test core concept आएगा and move away from rote memorization. Assessment जब conduct करेंगे all schools, चाहे private है चाहे government है, तो students data is anonymized, use data for continuous monitoring and improvement for the students, that can be done. तो इसीलिए उनका जो रिपोर्ट कार्ड डिजाइन किया गया वो 360 डिग्री एंगल लेके किया हुआ। तो उसमें क्या ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, प्रोग्रेस इन प्रोजेक्ट बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, क्विज रहेगा, रोल प्लेस, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियो रहेगा, सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट रहेगा, प्रोग्रेस इन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, इंटरएक्टिव क्वेश्चनियर रहेगा, पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स असेसमेंट रहेगा उसमें। तो इसीलिए क्या, फॉर पब्लिक डिस्क्लोजर बाय स्कूल ऑफ देयर ओवरऑल स्टूडेंट आउटकम्स, ये सारा चीज देखना है। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने एक गाइडलाइन दे दिया असेसमेंट के लिए, स्टेक होल्डर, बोर्ड ऑफ असेसमेंट, नेशनल असेसमेंट सेंटर फॉर स्कूल एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इन द असेसमेंट सिस्टम बाय 2022-23 academic session to align with national curriculum framework for school education 2020-21 ये किया गया। तो इसीलिए हम जो देखते हैं education is the single greatest tool for achieving social justice and equality. New education policy seeks to bridge gender and social category gaps in all levels of school education. ये है टारगेट NEP 2020 का। So Desmond Tutu ने बोला inclusive good quality education is a foundation for dynamic and equitable societies. तो इसीलिए सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो ग्रुप है उनके लिए भी सोचा है उन्होंने, जेंडर आइडेंटिटीज, सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज, जियोग्राफिकल आइडेंटिटीज, डिसेबिलिटीज, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हमारा इंडिया में है, पर्टिकुलरली फीमेल एंड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल जिन लोगों ने उनके लिए भी सोचा है,
जो शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटीज है, उनके लिए भी ये सुविधा रहेगा। जियोग्राफिकल आइडेंटिटीज में जो विलेज से है, स्मॉल टाउन और पर्सनल डिस्ट्रिक्ट से है, उनके लिए भी सोचा है। कोई डिसेबिलिटीज है, इंक्लूडिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन सच एज माइग्रेंट कम्युनिटीज, जो कम्युनिटीज माइग्रेंट होकर आ गया एक प्लेस से दूसरा प्लेस में, लो इनकम हाउसहोल्ड्स, children in vulnerable situations, victims of or children of victims of trafficking, orphans including child beggars in urban areas, and the poor. So separate strategies will be formulated for focused attention for reducing each of the category wise gaps in a school education. तो इसीलिए हम देखते हैं उनका क्या पार्टिसिपेशन जहां पर जरूरी हो, सोशली सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स जो है, स्कूलिंग सिस्टम विल बी स्ट्रेंथ, स्पेशल एजुकेशन जोन विल बी डिक्लेयर्ड फॉर एजुकेशनली डिसएडवांटेज group, gender inclusion fund will be there for girls and transgender, free boarding facility will be there, inclusion and equal participation will be there, home based education will be there. Teachers must be helped to identify such learning disabilities early and plan specially for their mitigation. Additional special educators already there. Already in all private schools we are having special educator, we are wellness teacher, we are having काउंसिलर, हम लोग तो रखा है, लेकिन सभी सरकारी स्कूल में अभी नहीं है। तो प्राइवेट स्कूल में ये अभी ऑलरेडी मौजूद है, सीबीएसई ने पहले ही चालू रखा। ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ स्कूल, स्टेट और अदर बोर्ड एग्जामिनेशन असेसमेंट बाय द एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अभी जो एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, नीट का एग्जाम है, जो ऑल इंडिया ज्वाइंट का एग्जाम है, जो यूजीसी का एग्जाम है, वो एनटीए एजेंसी कंडक्ट कर रहे हैं। Opening NCC wings, students will be sensitized through this new school culture brought in by teachers, trained social workers and counselors. So human values such as empathy, tolerance, human rights, gender equality, non-violence, citizenship, inclusion and equity will be part of curriculum. इसलिए एफिशिएंट जो रिसोर्स है, effective governance through school complex should be there. Adequate number of counselors, trained social workers, teachers, adequate resources such as library, science lab, computer lab, sense of community built to overcome the isolations of teachers. Through joint professional development programs, sharing of teaching learning content, joint content development, holding joint activities, cooperation and support across school for the education of children with disabilities, improved governance of the schooling system by developing all final decision to principals, teachers, stakeholders. तो ये सारे लेके काम करना पड़ता है। So naturally इसमें ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट और एग्जामिनेशन में तो ये तो जरूर है, जो हमने बोला, जो इसमें एक पायलट प्रोजेक्ट हो जाता है, तो होलिस्टिक जो रिपोर्ट कार्ड जो हो जाता है वो 360 डिग्री में बनेगा। क्यों असेसमेंट जो होगा क्लास 3 में होगा, 5 में होगा, 8 में होगा, दैट पायलट इन सिलेक्टेड स्कूल विल बी कंडक्टेड इन 2020-21 थ्रू होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, इट विल बी रिफ्लेक्टेड। तो ट्रेनिंग ऑफ पेपर सेटर्स, मॉडरेटर्स, गोइंग ऑन टू स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन पेपर, so 10% higher order application oriented source, case based questions till it becomes 60%, और उसका बाद लास्ट में जो होगा a manual of assessment as for and of learning is being prepared. तो इसीलिए सीबीएसई ने क्या किया है, सेट अप ए सेंटर फॉर असेसमेंट, इट विल प्रिपेयर स्टैंडर्ड्स linked to learning outcomes, assessment framework, item blueprints and item development guidelines. Digital assessment unit is being set up.
तो सबसे बड़ा चीज है, बार बार जो मैं बोल रहा हूं, जो वर्क इनिशिएटेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ क्वेश्चन बैंक फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड आइटम्स फॉर क्लासेस 6 to 10 मेजर सब्जेक्ट्स विल बी अवेलेबल एट दीक्षा। आप दीक्षा में एंट्री कीजिए तो वहां पे सारे क्वेश्चन का पैटर्न मिल जाएगा जो मेन सब्जेक्ट का है, वो ऑलरेडी बना हुआ थ्रू एनसीईआरटी एंड इट हैज बीन गिवन बाय सीबीएसई। तो इसीलिए जो करिकुलर इनिशिएटिव होगा आर्ट एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन, तो जो भी हम पढ़ाई करेंगे तो नेचुरली जो भी एजुकेशन आएगा आर्ट इंटीग्रेटेड रिलेटेड आएगा, और स्पोर्ट्स के तो उन्होंने पूरा कंपलसरी कर दिया, डेली कम से कम स्पोर्ट्स का एक क्लास होना चाहिए बच्चों का, एक कंपलसरी कर दिया हर स्कूल में। और प्रिंसिपल को कि हेड जो होते हैं वही पेडागोजिकल लीडर बनेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल पेडागोजिकल प्लान्स। लेकिन वहां पर अगर कोई इंटरफेयर करे तो फिर पूरा सिस्टम हिल जाता है। तो इसीलिए अगर जो हेड टीचर है, प्रिंसिपल है, वो ठीक से अपना ढंग से काम कर पाए तो फिर प्लानिंग सही रहेगा, तो फिर एजुकेशन सिस्टम ठीक चल सकता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग लाइक आर्ट, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड, स्टोरी टेलिंग, गेमिंग, ये सारे रहेगा उसमें। और उसका बाद मैथमेटिक्स, हिंदी है 2 लेवल्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया स्टैंडर्ड बेसिक, हिंदी कोर ए कोर बी। अभी इंग्लिश और संस्कृत के लिए कोई कोई बोल रहे हैं जो बहुत कठिन लग रहा है, डिफिकल्टी है, तो अभी इंग्लिश और संस्कृत के लिए भी 2 लेवल बनने जा रहे हैं 2021-22 से। इंट्रोडक्शन ऑफ 9 vocational courses will be there. Introduction of 9 vocational courses also will be implemented from new education policy. Mandatory adoption of learning outcomes by CBSE school. Creative and critical thinking रहेगा, mandatory online training और experimental learning रहेगा, development of resource material, उसमें handbook, experimental learning, resource book, ये सारा कुछ रहेगा। तो स्टूडेंट्स को एनरिच करने के लिए जो जो एक्टिविटी होता है, आर्यभट्टा गणित चैलेंज, हेरिटेज इंडिया क्विज, ईवीएसबी एक्टिविटीज, सीबीएसई साइंस चैलेंज, रीडिंग चैलेंज, एक्सप्रेशन सीरीज, खेलो इंडिया साइंस एग्जीबिशन, ऑलरेडी ये सारे अभी है, ऑलरेडी फ्रॉम 2019-20 में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका। तो इसीलिए इसमें जो स्कूल से कुछ चाहते हैं तो ये मेनली क्या है जो हमने डिस्कस किया, मेनली जो हो गया लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स तो अभी होगा जब सारे ये चीज हम मेंटेन कर पाएंगे। तो इसीलिए असेसमेंट सिस्टम जो है प्रॉपर होना चाहिए, जो सिस्टम उन्होंने दिया। और उसका बाद क्या है, होलिस्टिक, मतलब 360 डिग्री असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट विल बी इन कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन्स, डिजाइन, क्रिएट मल्टी डायमेंशनल और होलिस्टिक रिपोर्ट रहेगा उसमें। remove separation between subject and discipline, adopt holistic educational approach by removing hard separation between arts and science, curricular and co-curricular activities, academic and vocational streams, vocational training to students। क्यों एनईपी में शो किया हुआ one bagless day, एक लगा बैटरी लो है। One bagless day can be planned for the hands-on learning of the vocational subjects, popularize and offer vocational courses training to students। तो इसीलिए हर बच्चों को ट्रैक करना है, हमेशा ही उसका देखना है, एजुकेशनल एक्सेस हेल्प करना है हर बच्चों को थ्रू आरटी एंटाइटलमेंट्स, इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स, parents, local administration, create safe and conducive environment for learning and teaching, maintain inclusive and clean infrastructure, self-audit on school quality, provide enabling resources both to students and teachers, ensure that all students at all levels of school education are taught by
passionate, motivated, highly qualified, then only it will be successful. So, and capacity building at all levels. So naturally, then only it can be done. So निष्ठा also one program is there. और इसीलिए क्या है अभी हर स्कूल सभी जो स्टाफ मेंबर है ट्रेनिंग देते हैं उनको अपडेट रखने के लिए, उनको ड्रिलिंग करने के लिए. They should be updated, then only students can learn many things. और मैंने जो बोला, जो engage with parents and community for a positive learning environment, तो पेरेंट्स को भी यहाँ पर इन्वॉल्व करना है. तो जहां पर पेरेंट्स से भी स्कूल को कुछ फायदा मिल सके. हो सकता है कोई कोई पेरेंट्स जो हमने बोला पहले बोला था, जो कोई अलग अलग फील्ड में है, उसी फील्ड का जो प्रायोरिटी है वो बच्चा को कुछ नॉलेज मिल सके उनसे. तो इसीलिए स्कूल को भी पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और कम्युनिटी में कुछ अच्छा चीज है जो बच्चों को दिखाना है और बच्चा का साथ इसका इंटरेक्शन भी होना चाहिए. तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो फ्रेमवर्क है, तो काफी ड्रास्टिक चेंजेस आने वाला है. तो इसमें हम लोगों को भी तैयार होना पड़ेगा. और अभी जो है हम ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में एडेप्टेड है, तो उसको छोड़ के हमें आगे बढ़ना है. फुल्ली डिजिटल हो रहा है. और दूसरा बात है, अभी जो सिस्टम है ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन वी आर लर्निंग ए लॉट. नाउ वी आर इन एडवांस एरा. सो व्हाटएवर वी वर in 2019, so from 2020, okay, we are getting COVID-19, but after that we have reached a place where we can learn many things, and whatever curriculum have been framed by NCERT, I think in future it will be developed. और अभी ये भी बात है, जो हमारा 2020 NEP पॉलिसी है ऑलरेडी फॉरेन में ये शुरू हो रहा है. इसीलिए कनाडियन सीरीज है, अमेरिकन सीरीज है, वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है. तो उसमें क्या है वो देखा जा रहा है, जहां पर एजुकेशन बेस्ड पोजीशन में आएगा तो उसमें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश किया जा रहा है. तो एक प्रॉब्लम है हमारा, आज काफी पेरेंट्स ज्वाइन नहीं कर पाए, तो कुछ नेटवर्क इश्यूज हो गया. तो जो सिस्टम है तो हमने बताया न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बारे में, तो इसमें काफी चेंजेस आने वाला है. तो इसमें अभी जो है सिस्टम स्कूल सिस्टम के लिए बोला हमने, बाकी जो हायर एजुकेशन के लिए वो भी सिस्टम बन चुका. टीचर के लिए क्या होगा, स्टाफ के लिए क्या होगा, पढ़ाई के लिए क्या होगा, वो भी बन गया. जैसे मान के चलिए अभी क्या होता है, टीचर BA BSc BCom की MA MSc MCom करके फिर B.Ed करते हैं 2 साल का, वो फिर 4 years इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएगा. तो 4 years इंटीग्रेटेड कोर्स जब हो जाएगा तब नेचुरली पहले से उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा जो आप कौन सा लाइन में जाएंगे. जब आप टीचिंग करेंगे ना और कोई लाइन में जाएंगे. अगर +2 का बाद आप टीचिंग करना चाहते हैं तो 4 years इंटीग्रेटेड कोर्स में आना पड़ेगा. अदरवाइज कोई क्या करते हैं, चलो BSc पढ़ लेते हैं, उसका बाद देखते हैं क्या करें. अगर आपका पैशन है, आप टीचिंग करना है, टीचर बनना है, तो आपको आफ्टर +2 चूज करना पड़ेगा जो आप टीचिंग लाइन में जाएंगे.
इसमें 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आने आ रहा है। तो अदरवाइज आपको टीचिंग के लिए चांस ही नहीं मिल सकता है। मुश्किल क्या हो रहा है आजकल एजुकेशन सिस्टम में, चलो नौकरी इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें मिल जाएगा, लेकिन दिशा ये नहीं है जो हम टीचिंग करेंगे। तो इसीलिए एक परफेक्ट टीचर बनना बड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल। तो इसीलिए जो प्रोफेशन में है, अगर सोचो जे उनका मन में है ना हम फ्यूचर में टीचर बनेंगे, तो नेचुरली स्टूडेंट्स कैन गेट समथिंग फ्रॉम द टीचर्स। अगर उसका मन में टीचिंग नहीं है, चलो जॉब मिल गया, हम काम करते हैं, तो बच्चे को क्या मिलेगा? जॉब सेटिस्फेक्शन खुद को नहीं है कैंडिडेट को। तो इसीलिए अपना प्लानिंग पहले से रेडी करना पड़ेगा। व्हाट टाइप ऑफ लाइन विल बी चूजन बाय यू, ये बात है। थैंक यू ऑल टू डिवोट योर टाइम। Thank you, sir. 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 Bye. Bye, sir. Have a nice day, sir. Bye. Thanks to all the guardians, those who have joined, even the students, you have listened about the National Education Policy. So I hope this will be implemented soon, and you will benefit from it. Ma'am, I am a parents of a students. I want to say something. Yes. Yeah. As per the new education policy, national education policy, it's quite interesting, and it's definitely it will be helpful. But as a parents, it's my understanding to find out to take a decisions for the students. It's need a qualitative evaluation, like a counseling and the guidance. So how is that part was not very much clear about how the students will take decision, because normally in our systems, in our society, to take Yeah. decisions after completion of 12 10 plus 2, so what a student will think for the future, if you see that percentage, that will be maximum approximately it will be 10 to 15% or some more percentage. So for me, I think it's very much important. The counseling and the guidance is very much important to decide the next path from the 9th onwards. Yes. Students, you just mute your audio. Actually, sir, listen. Whatever the description sir has given about the new education policy, this is not a question answer session. So whatever the description you have heard and whatever the suggestion you have given, yes, truly, I appreciate that. So regarding counseling and guidance, so we will let you know in new education policy what more is there about this guidance and counseling. Okay. So how the students can be prepared well through it. Clear? Okay. Okay. Actually, this is not the question answer session. Just this is the webinar for new education policy. So if any inquiry required, you please visit the school. So all the PDFs and all are available in school. So you will get to know. Okay, in a detailed way. Okay, ma'am. Okay. Okay. Thank you. Thanks that you have shared your suggestion as well. Because even the schools needed some suggestions of the parents for the better cooperations and for the betterment of the schools, for the development as well. Okay, thank you, sir. Welcome, ma'am. Okay, I just want to bid goodbye to all of you. Good night, students, as well as all the parents. Bye, ma'am.
Good night. Good night. Thanks all of you. Bye, ma'am. Good night. Bye. I'm really very happy that so many parents have joined and they have listened this session Excuse me, ma'am. about the new Good education evening. policy. Excuse me, ma'am. Yeah, Can very you good able to evening, hear ma'am. my voice? Yes, yes. Yeah, I yeah, am very yeah. sad because I'm really sorry for that. I cannot able to attend the thing, okay, on time. So I'm really sorry. Yes, ma'am, that was Because the of your technical issues. Means already principal sir has said about this. Many parents even they can't able to join because of the technical issues. So it's not your fault, ma'am. So not at all. Means in school, whatever the PDF it is available about the national education policy. So you will get to know about it. No matter, ma'am. Okay, okay, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Okay. Okay, my pleasure, ma'am. Now I request everyone to please leave the meeting. Bye, ma'am. Bye. Ma'am, thank you, Bye. ma'am. Bye, teacher. Welcome. Bye. Bye to everyone. And Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Thank you. Bye, ma'am. Samna ma'am.